Good morning. Today I'm going to show you a locality where Medlicott in 1864 discovered the palm leaves. Almost in the same locality or in the vicinity of that, we have stumbled on a fossil specimen, a rock specimen, which is a fossil of a palm. That is what I'm going to show you. And this is palm leaves are approximately 20 million years old. So this is the rock here in the Kasoli, and just see these beautiful specimens of rocks. And these are the palm leaves. Can you see these beautiful preserved palm leaves? How I call these palm leaves? Now you see, this is a complete rock specimen, but these, if you observe closely, then you see these are some laminations here. Very clear. It is a broken, must be very big, but this part is broken now. And this is the preserved part of it now, what we are seeing. This is preserved till here, and this is the basement of it. So this must be a very big palm leaf, but only the preservedness which we are seeing here is this much. So very interesting. 1864, Medlicott came in Kasoli. He was roaming here and he stumbled on some rocks which were not in situ, and then he thought that these were leaves, and when he asked Office Mental to identify them, they identified them to be palm leaves. And after say span of about say 100, more than 100, 1864, 1964, and now we are in 20s. So maybe 150 years approximately, more than that, we are getting palm leaves which were described by Medlicott in 1864. So very interesting discoveries made about a century, more than a century ago, and we are just trying to rediscover those. Again, I'll just show you a closer look. These are palm leaves. Palm leaves. So what is happening is very interesting things are happening here. The environment, palm leaves if we are getting, then probably the total environment of Kasoli, say about 20 million years, was entirely different. Palm leaves are associated with coastal environment, near coastal environment, and we are getting these and today at an altitude of 2000 meters, more than 2000 meters. So point is, a lot of paleo-environmental reconstructions need to be done. Paleo-latitudinal positions need to be redefined, and with more and more discoveries coming up, the old age notion of foreland basin
I think will be no more relevant in the evolutionary history of Himalayas, especially when we are talking about Swatu Lakshai and Kasoli formations. So I'm very excited to. So these are the veins, the parallel leaves which resemble the palms. But detailed study needs to be done. But I think it's a huge rock. It may be difficult for me to carry this, and when I'll try to break it, we have developed fractures here, cracks here, and I think I'll be able to preserve this length, this portion, and I think maybe let's see what we can get. But taking this huge specimen, it's not a very big specimen also, but it is big. So I'm trying to just break it here and see how we can just preserve this now and take it to our museum, which we are making very near to Dharampur. अब थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ मैं हो क्या रहा है यहाँ पे। आज कसौली में हमें ये पत्थर मिला जिसमें ये हम अगर इसको क्लोजली देखें तो ये पैरेलल वेनेशंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और ये पैरेलल वेनेशंस किसकी हैं, ये एक पाम लीव्स की हैं, उससे रिजेंबल कर रही हैं। पैरेलल वेनेशन का होना ही, और पाम लीव्स की तरह ये खूब बड़ी पत्ती रही होगी, पर यहाँ से सब टूट गया है, और हमारे को प्रिजर्व लेंथ जो मिल रही है इसकी वो यहाँ से और कुछ यहाँ से मिल रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 1864 में मेडलीकॉट यहाँ पे आए थे। उन्होंने कसौली क्लब के आसपास, कसौली के आसपास यहाँ पे कुछ ऐसी ही कुछ पत्तियाँ उनको यहाँ पे मिली, जिनको उन्होंने फीस्ट मेंटल को दिखाया, और उसने ये पाम लीव्स बताई थी। वो इंस्टीट्यूट नहीं मिली थी, वो ऐसे ही उनको किसी पत्थर में मिली और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। तो ये 1864 की स्टोरी है। उसके बाद आज करीब 150 साल बाद, जैसे कहते हैं, वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, और हमें भी कुछ ये पाम लीव्स की तरह कुछ प्रिजर्व लेंथ मिल रही हैं। 1864 का नज़ारा दोबारा से रिपीट हो रहा है। मेडलीकॉट अगर होते हैं यहाँ पे तो आज बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट रॉक्स नहीं ढूंढ पाए थे जहाँ से ये निकली है, वो यहाँ से निकला है। तो बेसिकली वो हमने आज ढूंढ लिया है। तो एक उनको ये ट्रिब्यूट है बेसिकली। अब इसको ले जाके इसकी जो उम्र है इन पत्थरों की वो 20 मिलियन साल है, और अगर हमारे को इसमें कुछ भी चीज़ मिलती है तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतने वर्ष की होगी। तो इसी तरह से हम इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट बता सकते हैं कि ये 20 मिलियन साल पुराना है। और ये 20 मिलियन साल जो पुरानी हमारे को ये पाम के लीव्स मिल रहे हैं, इसके बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स हो सकती हैं, उसकी इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ हम कर सकते हैं। क्योंकि आज जो इसकी एलिवेशन है वो 2000 मीटर है कसौली की, लेकिन जो और इसकी एनवायरनमेंट है ये हिमालयन रेंजेस में आता है, हिमालयस का पार्ट है, माउंटेन्स का पार्ट है। लेकिन जब ये बने होंगे तो ये अब पाम लीव्स और इसके एसोसिएटेड लीव फोलिए जो फ्लोरल असेंबली उस सारी की सारी ये दर्शाती है कि ये नियर कोस्टल इन्वायरमेंट थी। तो अगर हम 20 मिलियन साल पहले चले जाएँ या 2 करोड़ साल पहले चले जाएँ, तो ये जो कसौली था इसकी जो पेलियो लैटिट्यूडनल पोजीशन थी और पेलियो ऑल्टीट्यूड था,
वो बहुत ही कम रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली कहें तो 500 मीटर या 200 मीटर के बीच में, और इसकी पेलियो लैटिट्यूडनल पोजीशंस भी इक्वेटर के आसपास ही रही होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशंस होने वाली हैं, और जैसे जैसे और डिस्कवरीज यहाँ पर मिलती जाएंगी, हिमालयज़ जिसको हम कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मानते हैं, उसके परतें धीरे दर बदर खुलती जाएंगी और हम इसको अच्छी तरह समझने में कामयाब होंगे। तो ये एक पहल है, उसको प्रिज़र्व करना एक अपने आप में एक चैलेंज है। देखते हैं अब इसमें कितना हिस्सा हम प्रिज़र्व कर पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर ले जाना भी काफ़ी मुश्किल है। ये कुछ क्रैक्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, तो ये जो क्रैक्स हैं इसको यहाँ पे अगर हम करेंगे तो मे बी यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से भी ये टूट सकता है। हम इतनी वैसे भी प्रिजर्व लेंथ मेरे पास जो आ रही है वो यहीं से यहीं पे आ रही है। अगर मैं इसको रिकन्स्ट्रक्ट करूँगा तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे करें, तो अगर मैं इस पूरे के पूरे पत्थर को ले जाने में कामयाब हो जाता हूँ तो हो सकता है हम इसके यहाँ से ये डेवलप कर दें और यहाँ से ये गिरे। तो ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज यहाँ पे मिली है। तो मेडलीकोट को याद करते हुए ओफिस मेंटल के डिस्क्रिप्शन के साथ इन पत्तियों को जो इस पत्थर में हमें मिली हैं, कोशिश करेंगे इसको बचाने की। अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चिज़ल आउट करूँगा ताकि मैं इसका थोड़ा सा वेट कम कर सकूँ और इसको जो हम म्यूज़ियम बना रहे हैं यहाँ पे डंगियारी में, वहाँ पे ले जा सकें।